where it is mentioned in the Quran very clearly, where Allah describes the role of man and women. There cannot be any job or any responsibility above this. It is the first and foremost, and we need to give it the highest priority. Introducing Mukhita here. I met Mukhita about 25 years back when she was attempting to integrate Quran into the children's education system. And it was such a beautiful thought that I have been following her since then. But it so happened that this attempt is not so successful because all the schools do not allow it. So though the teachers are being trained, she does skill training for them as well as Quran integration with education. And not all teachers are passionate, and not the government rules also do not allow religious teaching in the school. The best thing would be to empower the parents, to educate the parents so that parents, especially mothers, can take care of integrating Quran and Hadith in the child's education. It is a day-to-day thing. It's a minute-to-minute task. It is not just a job of an hour to just sit and explain a story of one of the prophets, or just to have a just to sit and teach Qurani ayat for half an hour. It's not that. It's every minute, every second, whatever the child is doing, you connect that with Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, connect it with the Hadith, teach it to the child. It's like a small drop by drop, drop by drop. You keep teaching that to the child. Teaching Quran and Hadith to the child in very minute things so that it forms a strong foundation, and the belief of the child is in depth, and then the child, it's very easy for the child to immediately develop the trust in Almighty. Anything might happen anywhere around him, but he will have a very strong foundation of, yes, Allah is there and Allah will take care of it. Whatever is happening for the best. Those are the beliefs that we want inculcated in the coming generation, so that they are relaxed, content, and peaceful, and above all, ethical. So now I request Mukhita to please take over and start her talk, initiate her talk. Okay, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy to see you all, alhamdulillah. मैं जो है थोड़ी सी उर्दू में बात करती हूँ और थोड़ी सी इंग्लिश में, बिकॉज शायद यहाँ पर मिक्स्ड ऑडियंस है, तो ठीक रहेगा ना इंशाल्लाह ताला। ओके, आप लोग अपने थोड़ी सी सेटिंग्स देख लें। अगर इफ यू आर वेरी यूज्ड टू जूम देन अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स गुड, वरना सा थोड़ा सा सेटिंग देखें, म्यूट पे रहें, और जब हम इंशाल्लाह अपने अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहेंगे तो आप अपने अनम्यूट करें। दूसरी चीज, चैट बॉक्स कहाँ पर है वो जरा देख लें, ओके, सो दैट यू कैन सेंड मी अ मैसेज। जब हमारे इंशाल्लाह आज के सेशन में थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा तो वहां पर आपको अपने आंसर्स भेजने हैं, तो चेक वेयर द चैट बॉक्स इज एंड कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। इसके बाद एक रेज द हैंड वाला एक सिंबल होता है, कैन यू प्लीज फिगर इट आउट? अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम है तो प्लीज थोड़ा सा उसको टटोलिए और मालूम करिए कि कहाँ पर है। अगर दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, राइट, माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पर क्या कोई फादर भी हैं ऑडियंस में? क्या कोई फादर्स हैं? अगर हैं तो प्लीज हाथ ऊपर करिए।
I see them. Mm. Okay, mashallah, good. I can see one person. Adnan bhai hand. Thank you so much. All right. क्या यहाँ पे कोई ग्रैंड पेरेंट है? ग्रैंड पेरेंट हैं और अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं फिर तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए, बिकॉज यू आर अ वेरी टेक savvy ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, माशाल्लाह। नो फादर्स प्रेजेंटली, अच्छा, बट देन देयर इज वन अदनान ब्रदर। खैर, इसकी वजह मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करते हैं। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र कि हम सबको अल्लाह ताला यहाँ पर आज अल्लाह ताला ने जोड़ा है। एंड जो भी हम बात करेंगे वो अल्लाह को राजी करने वाली बात है। So may he be pleased with you, with me, with all those who are listening, and इंशाल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक दे, वो सलाहियत दे कि हम जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, उसको हम अमल में लाएं, और उसमें हमको अल्लाह ताला ना आजमाए। क्योंकि एक शेख से ये सुना था कि इल्म जो है वो हमको जहन्नुम तक खींच के लेके जा सकता है। So the knowledge can drag you to hellfire. And how is that possible? Because मालूम तो था लेकिन अमल नहीं था। तो अल्लाह ताला हमको अमल करने वाले बनाए और अमल करना हमारे लिए आसान बनाए। बिकॉज पर्सनली मैं तो आई एम ए वेरी वेरी वीक मुस्लिम। सो अल्लाह ताला अगर वो जो होता है ना कि हमको आसानी से पास कराने वाले कैटेगरी में डाल दें तो अल्लाह की रहमत होगी। And I also thank the foundation who has organized this whole thing, Kind Deed Foundation, which is headed by Arshia Baji. So mashallah, ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है कम्युनिटी के में, क्योंकि then they make things happen. Of course, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, they make things happen, and हम सबको जुड़ाने का जिम्मा, क्रेडिट अर्शा बाजी को जाता है। So alhamdulillah, thank you for that. And background music आपको आते रहेगी गाड़ी की, because this is India, so please excuse that. And माशाल्लाह 100 लोग हैं यहाँ पर, तो हम 100 लोग जो है इंशाल्लाह ताला जन्नत में जब मिलेंगे तो हम याद करेंगे कि हम ये सेशन में साथ में थे इंशाल्लाह ताला। और अगर कोई हायर लेवल पर है तो प्लीज मुझे खींच लेना इंशाल्लाह। सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब यहाँ हैं। आगे बढ़ते एंड उससे पहले एक एक बहुत डरने वाली बात ये है कि मुझे ये डर है कि कहीं मैं उल्टा पुल्टा कुछ बोल ना दूं। तो अगर कुछ ऐसा है तो अल्लाह ताला मुझे माफ करे एंड आप लोग भी उसको दरगुजर करें इंशाल्लाह ताला। The good is from Allah, and anything that I speak which is not correct or which is not appropriate is from me, is from my weakness, inshallah. Okay. So, okay, you people are messaging me. I cannot read the message unless I want to look at the answers. Okay. So please आप लोग चैट में मैसेज अगर कर भी रहे हैं तो मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि that's okay if other wants people want to see that. ठीक, so आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला। एंड my name मैं हर सेशन में लिखती हूँ, क्योंकि अल्लाह हमारे पेरेंट्स को खुश रखे। हमारे वालिद साहब गुजर गए, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस दें। The spelling was not written correctly, so it's usually mispronounced. मेरा नाम है मुकीता, from अस्माल हुस्ना अल मुकीत, तो उसमें से है। तो इस वजह से I have put the name that is from Asmal Husna and my spelling. So you will see this spelling, which is not the correct pronunciation, but that's how it is. ठीक, okay. इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए let's come to the topic. And the topic is purposeful parenting. आप माशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप you are blessed with beautiful children, healthy children, successful children. तो पेरेंटिंग का पूरा
जो मकसद है एंड उसकी जितनी जिम्मेदारियां हैं वो आज हम समझेंगे इंशाल्लाह ताला। वन Okay, so as I move forward, inshallah, we'll see what this whole topic and the idea of this program was. Okay, inshallah. Okay, how do I go to the next slide? Okay, I've done this. ठीक. So the main topic आप जो बार बार देख रहे थे आपके WhatsApp पे was about तरबिया। लेकिन मैं आपको शुरू में बताते हुए चलूं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं ऑन टाइम। आई एम नॉट एन आलिमा। ओके, सो अगर तरबिया जैसी हैवी टॉपिक के बारे में कोई बात करेगा तो मैं सोचती हूँ कि वो कोई स्कॉलर हो या मुफ्ती साहब हो या कोई आलिमा हो जिनको बहुत कुरान और अहदीथ की इतनी मालूमात हो कि वो उसके बेसिस पे बात करे। इंशाल्लाह द होल टॉक कुरान और अहदीथ के बेसिस पे ही होगा, लेकिन वो जो अथॉरिटी स्कॉलर्स रखते हैं वो ऑफ कोर्स मेरे पास तो नहीं है, तो फिर मैं क्यों बात करूं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा आई मीन the reason why I feel I can talk about this topic is जितने साल अल्लाह ताला ने like he wanted, I have been working at schools, I have been working with students and I have been working with mothers जो schools में जो related होते हैं। तो I mean Allah knows the count, लेकिन इतने सालों में इतनी तो समझ हो गई है कि मसला कहाँ पर हो रहा है and why are the students not very happy, they are not performing, why are the parents so distressed, and why are the teachers so frustrated, and why is the community, the society not progressing as a whole thing। तो ये तो समझ अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी तो आ गई है। तो based on that authority, I feel I can share a few of my observations with you and hopefully it will help inshallah। Allah wali। Okay, so again जो मैं बोलूंगी वो इट्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैं अगर आपसे बात करती हूँ या आपके स्कूल में आती हूँ या आपके बच्चों के प्रिंसिपल से बात करती हूँ उस बेसिस। So when I train the teachers, we look at two things. Why should you be doing this and how should you do it? आज का भी टॉपिक इंशाल्लाह ताला यही दो चीजों पर बेस रहेगा। तो why parenting and how parenting, बस सिंपल ये दो चीजें हैं। नाउ why पर बहुत चीजें डिपेंड होती हैं, क्योंकि जब तक हमको क्यों समझ नहीं आता हम उसको कैसे करें, उसको कैसे अदा करें वो समझ नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जैसे कि बच्चे हैं, बिल्कुल ओके, बच्चे जो हैं फर्ज करें कि कोई चीज जमाते जा रहे हैं ऊपर एक के ऊपर एक, ओके, तो दे आर डूइंग इट बिकॉज एक तो उनकी वो फितरत है कि दे बिल्डिंग देयर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड दे बीइंग क्रिएटिव। तो ये सब वाई वाला फैक्टर है जो हमको मालूम है। कोई चीज अगर बार गिर रही है बार बार तो वो फिर उठाते हैं, तो वो उसमें वो ना हारने वाली वो जज्बा है उनके अंदर, ओके। बट देन दे डू नॉट नो व्हाई दे डूइंग इट, क्योंकि वो बच्चे हैं। जैसे हम बालिग होते हैं, जैसे होश संभालते हैं, शऊर आता है, अगर तब ही हम कोई काम करते जाएं बगैर उसका मकसद समझें तो फिर तो बच्चे में और हमें कोई फर्क नहीं है। तो आप आज जो कर रहे हैं, आज इस सेशन में आप बैठे हैं या मैं दे रही हूँ, ये सब का वाई हमको मालूम करना है एंड फिर हाउ वाला इंशाल्लाह ताला इट विल फॉल इन प्लेस। सो फॉर एवरीथिंग these are the two things that we do even in the trainings when we are learning something, when we are trying to upskill ourselves. These are the inshallah two areas that we try to work on. Now why me, what is the purpose of for anything, okay, what is the purpose of you being born, what is the purpose of you being present on this earth till now, what is the purpose of you being a parent। तो उसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्लीज मुझे लिख कर, अगर आप चैट्स अब यूज कर सकते हैं, अगर आप चैट लिख कर मुझे बता सकते हैं कि व्हाई, what is the purpose as a Muslim
एंड फिर दूसरी चीज बताएं, व्हाट इज द पर्पस एज अ as a parent. So can you do this, please? Can you write in the chat box so that I can read? उर्दू चलेगा, इंग्लिश चलेगा, रोमन चलेगा, कुछ भी चलेगा. तो आप मुस्लिम होने का मकसद क्या है और आप पेरेंट होने का मकसद क्या है? स्टार्ट. Okay. Farzana says, leave a life. Okay, mashallah. Okay, very nice. Del, Saliha, okay. अच्छी बात है. Good. Faridunisa, good. Okay. Do I need to type the questions, Farhana? That's what you meant? Okay, Adnan, ठीक है. Rifa, live. Right. Okay. Jazakallah khair to all those who answered. And I think you're spot on with your answers. Doing good. We have to raise good Muslim children who are in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lovely. Very nice. Okay, we can stop now. And if somebody didn't write, we have other questions, inshallah, that you can take part in. All right, Jazakallah khair. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के आंसर्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो go into the chat and read, and they're all mashallah good correct answers. But then Allah subhanahu wa ta'ala has created so many things, and everything has a purpose. Okay, even the mosquito, the cockroach, the ant, the rock, the tree, they all have a purpose. So Allah subhanahu wa ta'ala says कि I have not created anything in jest. मतलब ऐसे ही किसी बगैर वजह के तुम अल्लाह ताला ने कोई चीज नहीं बनाई है. तो हर चीज का एक मकसद है. तो फिर इंसान का भी मकसद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान तो बेस्ट ऑफ द क्रिएशन. एंड वी हैव सीन दैट देयर, आई मीन आपके हिंदू नेबर्स होंगे, जो भी है, नॉन मुस्लिम्स होंगे, वो सब भी कहते हैं उनका कोई पर्पस है ना. तो वी हैव सीन दैट क्रिएशन, लेट इट बी नॉन ह्यूमन, उनका पर्पस है. एंड humans में non-Muslims, they say they have a creation, they have a purpose. But then it's only the purpose that Allah has decided, which is for us, that we need to take. है ना कि अब आप लोगों में से कितने लोगों ने शायद कोई टॉक शोज में सुना होगा या कोई दोस्त को बोलते हुए सुना होगा, कोई पता नहीं किसी ना किसी के पास तो सुना होगा कि उन लोग कहते हैं कि जिंदगी का मकसद ना ऐश करना है. जिंदगी का मकसद है कि सबके साथ अच्छे रहो. जिंदगी का मकसद है कि आप जो है ना तरक्की करो. सो दे ऑल हैव देयर डेफिनेशंस ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. तो लेकिन ऐसे थोड़ी जिंदगी चलेगी. जो अल्लाह ताला ने जो जिंदगी बनाई है, दुनिया बनाई है, ही इज द मास्टर एंड ही विल टेल अस व्हाट इज द पर्पस. एंड द पर्पस इज ओनली एंड ओनली टू वर्शिप. तो ये हमारे लिए बहुत 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 अल्लाह की रहमत हो गई कि he has sent us in this world with a goal, जैसे कि मतलब a written goal कि this is your, and in Quran he says कि ये आपका मकसद है, आप दुनिया में जाएंगे तो आप सिर्फ यही करेंगे. Now आप में से बहुत लोग माशाल्लाह इस बात से completely एग्री करते हैं, क्योंकि आपकी समझ अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक पहुंच गई है. लेकिन इस थोड़े लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ शायद नहीं है, या फिर जब हम इतना इस्लाम की समझ हम नहीं रखते थे कि भाई 24 घंटे हैं दिन के, 24 घंटे थोड़ी अल्लाह की इबादत हो सकती है. ऐसे वाले भी ख्याल थे पहले कि इसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दुनिया के लिए करनी होती है. सो द प्रॉब्लम वाज दैट वी हैव ऑलवेज सीन, और वी वर टोल्ड, और वी वर शोन दैट दुनिया एंड दीन आर टू सेपरेट एरियाज. दिस इज हाउ वी वर प्रोग्राम्ड. तो जैसे कि अगर कोई बच्चा डिग्री कर रहा है, okay, तो वो हम उसको दुनियावी पढ़ाई कहते हैं. एंड फिर उसका जोहर का वक्त हुआ तो फिर हम उसको वो जोहर और असर के वक्त को कहते हैं कि वो दीन का काम है. ठीक है. तो
ये इस तरीके से हमको प्रोग्राम किया गया है. And but what does Allah say? And Allah is haq. And Allah says that you have been created only for one purpose. So the purpose now is to worship Him. But what happens when we are doing other things? No matter what we do, our intention, जो हमारी कोशिश होती है, जो हमारे एक्टिविटीज होंगे दिन के, जो हमारा किरदार होगा, जैसे कि आप बेटी हैं या आप टीचर हैं या आप बीवी हैं या आप सास हैं, ओके, या फिर आप मतलब लाइक बीवी एंड सास होना भी एक टाइटल ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. फर्ज करें आप कहीं बहुत बड़े एमएनसी के कोई सीईओ हैं या आप कहीं अच्छे से हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, कुछ भी हो, यू हैव अ टाइटल, यू हैव अ रोल, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड योर चाइल्ड केम फर्स्ट इन समथिंग. Okay, all these things should still align with what Allah says. Do they fall in that circle of purpose? Am I doing this to please Allah? Am I doing this as worshipping Allah? तो आप माशाल्लाह यहाँ पर काफी क्वालिफाइड लोग होंगे, बहुत एक्सपीरियंस लोग होंगे, तो आपके जितने साल गुजरे हैं, ऑब्वियसली हमारे आई मीन आप शायद आप लोगों के होंगे, मेरे तो पूरे साल इतने शऊर में नहीं गुजरे जहां पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ मेरा जितने एक्टिविटीज थे, जितने इंटेंशंस थे, जितने अचीवमेंट्स थे, ये सब हैव मेट द पर्पस. आई कैन नॉट से दैट. अल्लाह ताला सामने जो है आगे मदद करे. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिकम अ पेरेंट? the activities and the role and the intention and the efforts जो purpose को meet करने चाहिए, वो जब आप parent बनेंगे, do they still fall in the circle of purpose? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी हाँ, ये तो purpose ही है. But what is the purpose of a Muslim? The problem is the purpose somewhere loses its effect with some parents. I wouldn't say with many of you. And okay, let's try to understand the purpose slightly better, because this is the crux of the whole session. किसके पास मकसद होना चाहिए? अगर मैं पूछूं कि किसके पास मकसद होना चाहिए, तो उसमें आप if you want to chat, please chat. Can you tell me purpose होना किसके पास चाहिए? Okay, Faridunisa says both parents. हाँ खदीजा. Salha, you said children. A 7-year-old, parents. I think I'll go with Khadija's answer. Khadija said adults. And Islam में adult किसको बोलते हैं? दुनिया में तो 18 साल वाले इंसान को adult बोलेंगे. इस्लाम में किसको बोलेंगे adult? जो बालिग हो गया और उसकी उम्र अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं. तो the state doesn't decide, the country doesn't decide कि आप कब बालिग बनेंगे, आप कब adult बनेंगे. तो अल्लाह ताला decides the age, and जैसे ही वो बालिग बनेगा, उसको उसका हिसाब किताब शुरू, and फिर उसको हर काम में एक मतलब it should serve the purpose, isn't it? Mental maturity, Khadija, Allahu alam, I wouldn't say mental maturity, because in some countries children mature mentally very very early. जहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ की मेंटल मेच्योरिटी तो बहुत जल्दी आ जाती है. जैसे कि 7 साल में बच्चा मेच्योर हो गया, फलस्तीन में बच्चा 8 साल का मेच्योर मेंटली हो गया, बट उसका हिसाब नहीं शुरू हुआ. तो एंड अमेरिका में आप देख लें, शायद वो 16 साल का भी होगा, उसकी मेंटल मेच्योरिटी नहीं होगी. ओके, सो everybody who has reached puberty according to Islam, he now needs to understand his purpose. Okay,
All right, I'm closing the chat box, so if you send me something, I won't be able to read it. Okay, Jazakallah khair. So आपके पास मकसद है, एज ए पेरेंट आपके पास मकसद है, एज ए ह्यूमन आपके पास मकसद है। आपका अगर कोई बच्चा जो बालिग हो चुका है उसके पास मकसद होना जरूरी है। वो जो भी अमल उसके हैं वो ये जानते हुए करे कि ये क्यों है। जो ठहराव आएगा, जो और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो तो वक्त के साथ साथ आएगी, बट समझ में तो आ जाना चाहिए कि मैं, मेरा हिसाब अभी शुरू हो गया है और मुझे मकसद के what is it, towards my purpose I have to work, right? When you become a parent, do you agree that Allah Ta'ala has used your body to bring the souls that he has already created? ये बहुत अच्छी बात है कि हम पेरेंट्स को देखते हैं कि बहुत खुश हैं, वो माँ बाप बन रहे हैं, वो लाइक दे फील ऑनर्ड, दे फील ब्लेस्ड, दे फील यू नो extremely happy. All that is a human feeling, which is fine. But अगर से very technically देखा जाए तो it's a body that Allah is using and He's giving you an amana for Him to continue the ummah, isn't it? तो यहाँ पर is parenting a purpose or is parenting a responsibility? पेरेंट, आप जो माँ बने हैं, जो बाप बने हैं, ये आपका मकसद है या ये आपकी जिम्मेदारी है? क्योंकि आपका मकसद है अल्लाह ताला की इबादत, और वो बहुत जरियों से हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको माँ या बाप बनना होगा तभी वो मकसद पूरा होगा। जब आप माँ नहीं बने थे तभी भी आपका एक मकसद था। जो माँ नहीं बनते हैं उनका भी एक मकसद है, जिनकी औलाद गुजर जाती है उनका भी मकसद है, और जिनके औलाद बड़े होकर अलग हो जाते हैं तो वो माँ बाप का भी मकसद है। तो is parenting a purpose or a responsibility? So now we need to understand कि हमारा मकसद एक ही रहेगा। मकसद ये जो x जो सर्कल में है, it should not change just because you have become a parent. The मकसद will still remain this. Every intention, every effort जो भी आप करते हैं, okay, वो मकसद है। आप पेरेंट बने हैं, वो आपकी जिम्मेदारी बनेगी जो अल्लाह ने आप पर डाली है। और आपकी जिम्मेदारी कहीं मकसद ना बन जाए, इसका आप ख्याल रखें। आपकी औलाद एक तरीके से आपका इम्तिहान है कि आप जन्नत के कौन से मुकाम तक पहुंच सकते हैं थ्रू योर औलाद। आप आपके जाने के बाद दुनिया में कौन सा ऐसा जरिया छोड़ सकते हैं जिससे आपके अमल, मतलब सवाब आपका बढ़ते रहे, है ना। यही हदीस है कि एक नेक औलाद आपका सवाब को जारी रखेगी। तो यही दो चीजें हुए ना कि आपको औलाद इसलिए दी गई है कि आप अपना जन्नत बनाएं, और फिर अगर नेक औलाद को छोड़ के जाते हैं तो फिर वो आपके जाने के बाद भी आपके सवाब में इजाफा करते जाए। इसके अलावा कोई है, इसके अलावा कोई मकसद है कि वो आपको सिक्योरिटी देगा, वो आपको जो है खुशियां देगा, वो आपको पैसे कमा कर देगा, वो आपको बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेगा? ये तो मकसद नहीं हुआ ना। तो आपकी जिम्मेदारी को आप लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर, इतना उसमें उलझ कर अपनी अपने असल मकसद को मत भूलें। आपको अल्लाह ताला ने हम सबको इतना काबिल तैयार किया है कि हम ऐसे बहुत काम कर सकते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम जब पलट के देखेंगे हम खुश होंगे कि वी आर लीविंग समथिंग एज ए लेगेसी जो हमारे बाद भी चलेगी। तो वो सिर्फ औलाद के जरिए होना जरूरी नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, आई थिंक ये कल्चर भी हमारा ऐसा ही है कि अगर एक माँ बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करती है और कहीं और तवज्जो देती है तो उसको सोसाइटी जो है ना एक बुरी माँ के तौर पर देखता है ना। तो द होल सोसाइटी वांट्स कि पूरा फोकस शौहर पे हो, ससुराल पे हो और औलाद पर हो।
which is not what Islam wants. And sadly हमारे बहुत सारे practices ऐसे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, and we still continue with it. आप कहेंगे कि थोड़ा फैमिली का प्रेशर होगा, जो भी वजूहात तो काफी हैं, like every house will have a different story, but the person sitting in that house, does she or he, do they understand that this is my purpose and this is not my purpose? At least वो why वाला clear है या नहीं है? Okay, now as I was saying कि जिनकी औलाद नहीं है उनके पास पर्पस है, जिनके ओके अनमैरिड पीपल के पास पर्पस है, तो पेरेंट्स के पास भी पर्पस होना जरूरी है. अब पर्पस क्या होगा कि अल्लाह की इबादत करेंगे, and there are multitude ways where you can worship Allah. We have seen that people come up with solutions for the society, for the community. तो आप लोग इंशाल्लाह ताला इस तरीके से, सिर्फ शायद अल्लाह ने आपको 2 जिम्मेदारियां दी हैं या 4 दी हैं या किसी को 6 दी हैं, उससे चले 10 भी दी हैं. ओके, पुराने जमाने में 10 थे, 20 थे. अगर 20 भी जिम्मेदारी देते हैं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक एक्सट्रीम केस, ओके, वेयर यू कैन से दैट आई एम सो बिजी, उसके बावजूद भी you will have time for other people, you will have time for other causes. तो वो आप कितना have you realized it? All right, so inshallah taala I hope I have conveyed the why part. So you are a parent because Allah wants you to attain your Jannah through I mean this is just one way of it, inshallah taala. And अगर ये नहीं भी होता तो भी अल्लाह ताला आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज देते जहां पर आप जन्नत हासिल कर सकते थे. नाउ अल्लाह हैज पुट सो मेनी क्वालिटीज इन यू, जहां पर आपके दिल में रहम है आपके बच्चे के लिए, आप उसके लिए पैसा कमाते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप जागते हैं रातों में, और फिर आप यू नो देयर आर सो मेनी ways where you take care of your child. ये सब खूबियां, ये हिम्मत और ये जज्बा जो दिल में है, ये कहाँ से आए? ये अगर अल्लाह ताला आपके दिल में नहीं डालते तो क्या आपके दिल में आते हैं ये फीलिंग्स पूरी? तो ये आए तो अल्लाह ताला की तरफ से ना, ये अल्लाह ताला की सिफात है जो अल्लाह ताला ने आप में डाली है. एज अ मदर, एज अ फादर, यू विल हैव दैट कंपैशन, यू विल हैव दैट कंसर्न, ये सब चीजें. बट डज अल्लाह वांट यू टू लिमिट इट ओनली टू योर ब्लड चिल्ड्रन? क्या वो नहीं चाहेंगे कि जो सिफात आप में है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी औलाद के लिए, वो आप दूसरों की औलाद के लिए भी इस्तेमाल करें? Would Allah not want that? Are we doing it? I'm not saying that we should be equally worried about every child that is in the world. वो उतनी कैपेसिटी शायद हम में नहीं है, लेकिन आप कितने पेरेंट्स से मिलते हैं जहां पर वो इतने they are limited to their own children. They don't worry about anything else. They don't have the mental space to worry about anything. आप उनसे बात करें, आप बोलेंगे क्या वो सुबह में बच्चों को स्कूल भेजी, and then so every conversation will be around husband and children. So they don't have space for anybody else. आपके पास बहुत सारे लोग शायद MNCs में काम करते हैं, कोई बड़े से ऑफिसेस में काम करते हैं, वहां पर एक चीज CSR आप लोगों ने शायद सुना होगा. ओके, they want you to be responsible for the society that you live in, isn't it? तो जब ऐसा इदारा जो इंसानों ने तैयार किया है, दे हैव दिस वैल्यूज दैट आपके पास जो माल है, आपके पास जो वक्त है, आपके पास जो सलाहियत है, इसमें सोसाइटी का भी हिस्सा है, एंड दे मेक इट कंपल्सरी इन कंपनीज. तो जब वो कर रहे हैं, उनको ये समझ है कि आप कि जो भी like all the goodness that you have is not just for your family and for yourself, the other people have a share in it. When they have understood the value of it, as Muslims, don't you think we should know it better? Should we not open doors even further, even for more people? Because ये तो हमको जो है अल्लाह ताला ने बताया है, हमको कोई MNC के बोलने की जरूरत नहीं है.
So as mothers, as fathers, where are we? How much, how tolerant are we towards other children, towards other people's causes and problems? So this is where we will stop the why. Okay. In a nutshell, अगर हम पूरे points को देखना चाहें तो why am I a parent? ये clear होना चाहिए. I'm a parent because Allah has given me a responsibility. Through this, I can attain higher levels of Jannah. But my child is not my purpose. And other people who are in my society also have a right over me. So my purpose is a very big purpose where I have to stretch myself, stretch my energies and all the goodness that Allah has given me, and I have to spend it on others. ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा why. किसी को कुछ सवाल पूछना है? हाँ. Yes, हुमेरा. वुमेन्स प्रायोरिटी इज द फैमिली, ये बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ये अगर समझ आ जाए कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं तो ये करते हुए हम दूसरी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, क्योंकि हम हमारी हमारा विजन, हमारी जो व्हाट इज द उर्दू वर्ड फॉर विजन, आई डोंट नो, जो हम देख सकते हैं वो बहुत दूर की नजर है कि सिर्फ घर के हद तक सीमित होकर नहीं रहते. सो ये डायलॉग्स बहुत होते हैं घर में कि पहले घर का देखो, पहले घर के बच्चे को पढ़ाओ, पहले फला करो. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इग्नोर योर नजरिया. नजरिया is it nazariya for vision? Nazariya is your how you view a few things. I don't know. Can you understood what vision is? तो आप जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, if you want to do something more for others, it will be challenging for you, because then people will say कि आप पहले घर का तो देखो, वो बच्चों को पढ़ाने लगे, पहले अपने बच्चे को तो पढ़ाओ. ठीक है. what is the guarantee that अगर आप, जैसे कि बहुत सारे फैमिलीज में अब हो रहा है, 100% they're committed to the family. Okay, they don't see anything beyond the family, husband, children. उसके बावजूद बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद घर में बदतमीजी होती है. तो ये क्या गारंटी हुई कि अगर आप बाहर बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे, सिर्फ घर में देंगे, तो आपके घर में सक्सेस इन एवरी मैनर होगा? नहीं ना. तो एटलीस्ट we will do what Allah has ordered us to do and not what the community wants us to do, because there is no end to what a family wants, right? So we will move forward, and inshallah we will yes, Nadira. Yes, Rehan, correct. Yes, mashallah, Rehan, good. Yes, Humaira. Okay, we feel guilty. Yes, we do feel guilty. And the community plays a very big role in making us feel guilty every day for everything we do. तो अगर आप बाहर जाके कमाएंगे तो they'll make you feel guilty. अगर आप सिर्फ घर पे बैठे हैं they'll make you guilty. अगर आप further studies कर रहे हैं तो guilty. तो the purposeful parenting का मतलब ही ये है कि you know the purpose and then you are a parent. That's all, period. उसके बाद जितनी expectations दुनिया आपके ऊपर थोपती है, we have to now learn how to get rid of that, and the only focus is Allah happy with this? Okay, let me move forward, inshallah ta'ala. Okay, so we're coming to how. I hope कि why थोड़ा सा clear हुआ है. I cannot take the guarantee that clear हुआ है, क्योंकि it takes time and it only comes from Allah. And शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मकसद अपनी जिंदगी का पहले से ही पता है, तो मैं शायद ऐसे ही बोले जा रही हूँ. But anyway, so we will look at how now. ठीक है. पहली चीज, we all need to recognize that this is a test. It's an आजमाइश.
आजमाइश के साथ साथ ये भी हो सकता है बहुत सारी खुशियां हैं उसमें, एक लगाव है, एक 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 सपोर्ट है, ये सब चीजें हैं, दोज आर एडिशनल। ठीक है, लेकिन ये आजमाइश है। जैसे माल, अगर अल्लाह ताला ने किसी को बहुत गनी बना दिया है, बहुत रिच बनाया है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इट्स एन आजमाइश। उसके बाद इट कम्स विद अदर अदर थिंग्स, लाइक आपके पास आरामी होगी, फिर यू कैन डू मेनी थिंग्स एंड ऑल दैट। बट पहली चीज, पेरेंटिंग इज ए टेस्ट। ओके, नाउ हाउ डू आई परफॉर्म इन दिस टेस्ट, व्हाई एंड नाउ हाउ। तो इस टेस्ट में वील हैव टू रिकॉग्नाइज, अल्लाह ताला ये टेस्ट है और ये अमानत है जो बहुत कम देर के लिए मेरे पास है। आप जैसे, हमारा टेस्ट का एक पीरियड होता है आधा घंटा 3 घंटे, तो अल्लाह हैज ऑल्सो गिवन यू अ विंडो पीरियड वेयर यू विल हैव टू परफॉर्म, एंड देन उसके बाद यू कैन नॉट परफॉर्म। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो नोबडी इज गोइंग टू टेक द आंसर शीट फ्रॉम यू, राइट? सो so your test is that you prepare a slave of Allah who will make Allah happy, and who Allah will look at and will smile at the slave and at the mother of the slave, that the mother has done a beautiful job. Okay, so that's all your role is, कि आपने तैयार किया एक ऐसे इंसान को जिससे अल्लाह ताला राजी है। अब हम किस दौड़ में लगे हुए हैं, मतलब आप सब माशाल्लाह ताला, बच्चा जब से पैदा होता है आप बच्चों पे मेहनत करते हैं सो दैट वो अल्लाह से जुड़े, बेशक। लेकिन सोसाइटी का इतना प्रेशर हमारे पर होता है कि हम somewhere we slip and the purpose fades away. We don't even realize how shaitan has put covers over our vision. We don't get to see कि क्या मैं इसको अल्लाह के लिए तैयार कर रही हूँ या मैं इसको दुनिया के लिए तैयार कर रही हूँ, वो हमको नजर भी नहीं आता है। For example, a very, very, very common example is, and I don't know how many people have used this example, and मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ऑडियंस में जितने लोग हैं शायद वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, इंशाल्लाह। So a very common example is, अगर 7 बजे स्कूल बस आने वाली है तो हम बच्चे को 6:15, 6:20 को जबरदस्ती उठाएंगे, शावर के नीचे ठहराएंगे, मुंह पर पानी डालेंगे और उसके सब चीजें तैयार करेंगे सो दैट वो उठे, तैयार हो, डब्बा ले और चले जाए, है ना? बहुत सारे मदर्स करती हैं ऐसे। I was listening to one mother, a young mother, and she was saying इतना मुश्किल है बच्चे को उठाना, तो मैं उसको सीधा सा उठाती हूँ और शावर के नीचे ठहरा देती हूँ so that he's awake and alert. तो and the same mothers कितने ऐसी होंगी जो बच्चे को फजर पे उठाती हैं, तो वो माँ उनको सोने देती है। क्यों सोने देती है? क्योंकि जरी देर में स्कूल बस आ जाएगी और वो बच्चा अगर सुबह से उठा हुआ होगा तो थका हुआ रहेगा। So what has Shaitan done? A beautiful mother who was so grateful to Allah, कि Allah has blessed the mother with a healthy baby, was so grateful and now is slowly losing that gratitude and is falling into the rat race. And the mother, without knowing, is ready to serve. मैं दुआ करती हूँ कि ये ऑडियंस जो है और आपके जो खानदान के जितने भी औरतें हैं, अल्लाह ताला सबको इस कैटेगरी से हटा दे। But there are mothers who are willing to follow the plan that Shaitan has sketched. Okay, and they all have a reason. They all have they can argue about it, saying कि क्यों मुझे भेजना पड़ता है बच्चे को सुबह सुबह उठाने के लिए और क्यों फजर के लिए नहीं उठा। So they can debate on that and they're very good at it. And again, that comes from Shaitan because he will allow you to debate till you're blue in the face. So anyway, so this, how should you do the test is, if you keep telling yourself every day that Allah Ta'ala, this child is with me only for a certain period of time. When I say this, I don't mean कि आपका बच्चा जो है आपसे चले जाएगा। आपका जो टेस्ट है, Allah Ta'ala will end that test.
जैसे ही वो बालिग बनेगा, जितना फाउंडेशन आप लोगों ने डाला है वो एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आप, you will still make rotis for him, you will still tell him namaz time pe padho, you will still do whatever good things you have to do, but then it is not your responsibility. Allah will not question you after that. आप कर रही हैं वो आप अपने मोहब्बत से कर रही हैं, जैसे आप वॉचमैन के बेटे को भी करेंगी, आप अपने बेटे को भी करेंगी, अपने बेटे को ज्यादा मोहब्बत से करेंगी। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिकली, आर यू अकाउंटेबल? नो। ओके, तो विंडो पीरियड बहुत छोटा है, इसी में आपको बहुत काम करना है, राइट? सो दैट्स, नाउ you might say that कि आपके घर पर काफी, that's the reason I asked, is there any grandmother here? Okay, कि आपको सास की भी जिम्मेदारी होती है या फिर शौहर की होगी, और भी बच्चे हैं आपके पास, अल्लाह ना करे किसी के पास शायद बीमार बच्चा है, अल्लाह ना करे किसी के पास मेंटली इल बच्चा है, और अगर किसी के पास है जो बीमार है, अल्लाह शिफा दे उनको, और अगर कोई मेंटली इल है तो अल्लाह ताला अपने करम से, अपने जलाल से जो है उनको नॉर्मल बना दे इंशाल्लाह ताला, आमीन। सो यू, ऑल आवर लाइफ्स, आप में से ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, सम में भी डॉक्टरेट, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई इम्तिहान नहीं दिया, जो स्कूल नहीं गया। एंड व्हेन एग्जाम टाइम कम्स, वी डू 6 preparations simultaneously, isn't it? और कभी कभी ऐसा होता है वी हैव टेकन एन एडेड कोर्स, तो वो भी है, और फिर एग्जाम्स भी हैं। या फिर अगर मदर्स आफ्टर मैरिज दे कंटिन्यूड देयर एजुकेशन, दे हैड young babies, infants, husband, SARS, and then exam preparation. So you have handled, mashallah, mashallah, you have handled many things at the same time. And Allah has made you capable of it. Okay? तो ये भी जो है आपका, ये जो parenting का stage है, it is where you will be tested by your in-laws, by your husband. I mean, Allah will test you in those manners. And again, Allah will test you as a mother as well, or as a father as well. These are the visible tests. Okay? These are the visible tests that we can see. But there are some hidden tests जो हमको नहीं दिखते हैं. There are very subtle ones. जो जब तक एक दिल अल्लाह ताला से जुड़ा नहीं है, इतना कॉन्शियस नहीं है, इतना अलर्ट नहीं है, उसको नहीं नजर आएगा। जैसे कि आपकी अच्छी सेहत है, ओके, वो एक आजमाइश है। आपके पास अल्लाह ने माल दिया है, एंड व्हेन आई से माल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंबानीज लेवल ऑफ माल, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर हम 3 वक्त अच्छे से खा सकते हैं बगैर सोचे कि कल का खाना कहाँ से आएगा, देन यू आर रिच। ओके, when you can go to the normal, what are those called, grocery stores, okay, and you can do your grocery purchasing without having to worry, you are rich. So you have mal, you have sehat, you have time. What do you do after your children leave? Okay, and then you have your neighbors. So Allah has given you so many opportunities where you can, sorry, these are not opportunities, I'm talking about these are tests again, कि अल्लाह ने ये सब दिए हैं और फिर he is going to check what do you do about it. Okay, so if you have mal, are you sharing it with others? If you have time, जैसे कि mashallah there are some mothers in our project जिनके पास 5 बच्चे हैं, and they homeschool them. And in a normal conversation, we would say कि 5 बच्चों के बावजूद अगर वक्त निकालना है तो ये तो मुमकिन ही नहीं है. This is the mental setting, isn't it? कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे और. But then these women, mashallah, they look after the family. And as somebody pointed out in the chat message, family is priority, yes. But it is not the purpose. So they have time for the family, and then they squeeze out time for other people's children. Why do they do it? पागल है,
उनको और कोई काम नहीं है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपना मकसद पता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके वक्त की पूछ होगी, उनको पता है कि उनके सलाहियत की पूछ होगी, उनके जो इल्म उन लोगों ने हासिल किया है उसकी पूछ होगी। सो ये लोग हैं जो जिनका दिल लरसता है अल्लाह के खौफ से कि क्या होगा अगर अगर मैं ठहरी हूं और अल्लाह बोलेंगे कि इतना तुम्हारा जब बेबी 3-6 महीने का था तुम क्या करती थी दूध पिलाने और सुलाने के अलावा, तुम्हारे पास तो बहुत वक्त था। सो स्टार्ट स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर कैपेबिलिटीज। अपने आप को ना ऐसे कंटेन मत करके रखिए कि मैं ऐसे इतना ही होगा, आपसे बहुत होगा क्योंकि आपका खालिक अल्लाह है, क्योंकि वक्त अल्लाह है। ओके, बरकत अल्लाह डालते हैं आप लोगों को। इट्स ए रेस, आप लोगों को ये सोचना होगा कि आज क्या किया, आज क्या किया, आज क्या किया। अ डे दैट गोज बाय विदाउट डूइंग मच इज अ वेस्टेड डे। ये मत सोचिए कि सुकून का दिन था, आज जल्दी काम हो गया, बच्चा सो गया, शौहर चले गए, डिब्बा बन गया मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा दिन था। ठीक है, अल्लाह का शुक्र करिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस दिन में फायदा क्या हुआ? अगर आखिरत के दिन आपको वो दिन दिखाया जाए तो विल यू बी प्राउड ऑफ योर डे? नहीं ना। So try to stretch and do as much as you can as a parent, as an individual, as a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah, inshallah ta'ala. Now, the next point, this is our routine. माशाल्लाह हम सब फजर पे उठते हैं, बहुत सारे लोग तहज्जुद पे भी उठते हैं, माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे उनकी दुआएं, हमारे लिए भी दुआ करें। तो डे स्टार्ट्स विद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन हम कुरान पढ़ेंगे, फिर किचन में जाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। ये रूटीन है। आपके शौहर को भेजेंगे, डा 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 डा। What was so special about the day? Nothing. So we will have to make each day special, each day meaningful, each day purposeful, inshallah ta'ala. Okay. And before we end the session, we will see how we can do it. इतनी पढ़ाई तो हम लोगों ने शायद पढ़ ली है, लेकिन as a mother, I think parenting is the only title which comes without any education. Marriage certificate is the certificate that qualifies you to become a parent. But then there is no other education that we spend time on which will qualify us, isn't it? तो करना क्या होगा? If you are serious about this role, if you are serious about the rewards that it will bring you, if you are fearful about the rewards that you can miss and the problems that you can create yourself, I mean, in reaching Jannah, then you should take it more serious. Then you should spend some time in learning about parenting. So just because you became a parent, you don't qualify as a parent. या तो आप दुनियावी पढ़ाई में कुछ पढ़ें, या तो फिर आप इस्लामी पढ़ाई में कुछ पढ़ें। जो दादी आपको कहती थी, जो माँ आपको बताती थी यार, एंड आई हैव नोटिस्ड एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव नोटिस्ड कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना पेरेंटिंग डिफाइन करते हैं बाय ऑब्जर्विंग सम अदर पेरेंट्स। अगर किसी के वालिद साहब बहुत सख्त थे एज अ पेरेंट और वालिद साहब और बेटे की बिल्कुल नहीं बनती थी, तो बेटा ये सोचकर रहेगा कि जब मैं बाप बनूंगा तो मैं बिल्कुल सख्त नहीं रहूंगा, मैं ऐसा रहूंगा। ओके, एंड अगर वालिद साहब मारते थे या माँ जो है whatever, okay, so they have their experience, and based on that experience they decide that I do not want to be a parent like that and I want to be a parent like this. तो कौन डिफाइन कर रहा है? आप खुद डिफाइन कर रहे हैं। But do you fall under the parameters of how Allah wants you to be a parent? No. Why? Because we haven't studied about it.
We haven't invested time in this role. ये हमको समझना होगा कि even if you want to become a typist, even if you want to become a compounder, okay, um, even if you're becoming a driver, you have certain tests. You have to learn something and you have to give the test. But जो parenting जो इतना बड़ा जो like the next generation is depending on you, उसके बारे में आप लोग नहीं पढ़ेंगे. तो ये तो फिर and it's not just the damage that you do to your child, it's the damage you do to the whole community. कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी वाइफ से परेशान हैं ये सोचते हुए कि क्या इनकी माँ इनको क्या नहीं सिखाई थी, अगर सिखा देती थी तो हमारा घर आज बहुत अच्छा होता, मेरे बच्चों की तरबियत अच्छी होती अगर मेरी बीवी को उनकी माँ अगर सिखा देती. There are so many women who are troubled by their husbands because the mother did not do a good job, isn't it? And the daughters of that man, they observe him and then they decide कि मुझे शादी नहीं करनी है. If this is what marriage is, then I don't want a marriage. ये सब क्यों हो रहा है? Because the mother didn't do a good job. चाहे वो बेटी की हो या चाहे बेटे की. And we have our own curriculum, we have our own definitions, we have our own set of rules as parents. And I have seen that a lot of parents, again, maybe inshallah, you people are not, but a lot of parents are very arrogant. Arrogant because they think their style of upbringing is the best and there's no scope of improvement. नहीं हमको मालूम नहीं, आप जो है ना इस तरीके से बच्चे से मत बात करिए, उस पर बुरा असर होगा, वो उसके जहनी तौर पर वो जो नहीं, मेरे को मालूम हमारे अम्मी भी ऐसे ही करे थे, हमको कुछ नहीं हुआ, हम लोग कुछ भी जहनी तौर पर कमजोर नहीं हो गए, वी आर डूइंग फाइन. सो दिस self-proclaimed PhD on parenting damages a lot. All the wives who are troubled by their husbands, it's because of the mother. हम बोल नहीं सकेंगे, लेकिन it's because of that. All the husbands who are troubled or all the children who are troubled by their parents, it goes back to that. Okay, so spend some time, inshallah ta'ala. Inshallah, we are planning to introduce the course. But if you can, in the meantime, study on your own and invest time, every moment that you invest, inshallah, Allah will be pleased with you. Okay, so that was about the part of how we should do it. Can somebody find the missing number, please? Answers? Oh, lovely. Sharp eyes. Oh, good. Saliha, Adnan, Hajra, Safa, very good. I'll tell you, Afia, I'll mention it later. Okay, yeah, number 26. All those who answered, you get a star, mashallah. Okay, and all those who knew the answer but didn't message, you get kuch nahi. So yeah, so the answer was 26. I just wanted to check आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, अल्लाह ताला आसान करे. Okay, so this was about why and part of how we should do it. Moving on, हमारा टॉपिक था तरबिया. अगर हम पूछें कि व्हाट इज तरबिया और तरबियत शुरू कब से होती है और कब तक जाएगी, तो आप लोग क्या बोलेंगे? तरबियत है क्या? बच्चों के अखलाक को सही करना, उनको अखलाकी तौर पर मजबूत बनाना, सही गलत दिखाना, all that you want to say is तरबियत. शुरू कब से होती है? Okay, Arshia. Okay, somebody says before they're born, Samreen, okay. Humaira says from childbirth to your end, okay.
Then Saleha says, right from conception, okay. Rifat, cradle to grave, okay. उनको दीन की तालीम देना, ठीक है, सही तरबियत वही है, good. Jamila says 3 to 15, okay. Uh, since they are in the fetus, okay. Khadija says that childhood. Aisha, Jamil says दुनिया आते ही. Tasneem says in the womb before they were born. Okay, Jazakallah khair for the answers. Um, okay, inshallah, Jazakallah khair. So tarbiyat, as many of you have pointed out, and सबके कुछ कम सही आंसर्स थे, एक आध थोड़ा आगे पीछे होंगे, लेकिन is a lifelong process, isn't it? Somebody said after birth, somebody said before birth. बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है और जब अल्लाह ताला उसमें रूह फूंक देते हैं, तब से जो बच्चा, जो माँ करती है, जैसे कि कुरान की तिलावत हो गई, जैसे कि वो जिस अंदाज में बात करती है लोगों से, वो उसकी जो फीलिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, हमेशा लोगों से बहुत गर्म अंदाज में बात करेगी, ओके, और अनग्रेटफुल रहेगी, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बच्चे पे इफेक्ट होते हैं। अगर माँ बहुत ठंडी है, मतलब लाइक ठंडी इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो हालात को एक्सेप्ट करती है, ओके, एंड शी इज नॉट मेंटली वेरी डिस्टर्ब्ड. आर दे विजिबल? ओके, ऑलराइट. I didn't want the notes to be visible, but okay. So if the mother is at peace with everything, is reciting Quran, is connected to Allah, it has an effect on the fetus, isn't it? And then it goes on. I would say that जब तक बालिग होगा बच्चा, तब तक उसकी तरबियत का सवाल होगा. उसके बाद जो होगा वो तो तरबियत, जैसे कि आप भी मेरी तरबियत कर सकते हैं, मैं आपकी करूंगी, कोई 80 साल की भी हम किसी की तरबियत करेंगे, बट जहां पर अकाउंटेबिलिटी आती है वो फ्रॉम चाइल्डहुड टिल बालिग की एज तक. या मसला क्या हो रहा है अब? आप सब जो है ना, आपकी सास और ससुर के बारे में सोचना बंद करिए. इट्स नॉट अबाउट योर हस्बैंड, it's about you. You as a mother, you as a father, when are you going to let go of your child? Or do you think that अगर आपका बच्चा 60 साल का भी हो गया तो आप जिम्मेदार हैं? नहीं है ना. आप जिम्मेदार होंगे अगर वो देर से आता है आप खाना देने के, या जो भी है, वो वाली चीजें अलग हैं. लेकिन हम अक्सर देखते हैं मदर्स को कि वो बहुत परेशान होते हैं, क्या करूं मेरा बच्चा, एंड देन द बच्चा इज अगेन हैविंग सो मेनी बच्चास, बट स्टिल क्यों क्यों करते हैं वो? उनके पास दूसरा कोई काम नहीं. कोई इतने जो बड़ा जिम्मा कोई लेकर बैठा है, क्या वो ये चीजों पर फिक्र ज्यादा करेगा कि बच्चा टाइम पर खाना नहीं खाता है, बच्चा उठ नहीं रहा है, फला नहीं है, बच्चा बाय द वे इस 40 साल का. तो ये हमको सोचना है कि आप जितना कर सकते हैं, जितनी अखलाकियत जो हैबिट्स आप डाल सकते हैं वो अभी डालें, जब आपका बच्चा बालिग स्टेज पर नहीं पहुंचा. उसके बाद चिड़िया निकल गई आपके हाथ से. ओके, सो डोंट लेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी खत्म हो गई है, जिसके बारे में अल्लाह आपको नहीं पूछेंगे, उसको आप इतना हावी मत होने दीजिए कि आप जिस लाइक अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, जो वक्त दिया है, जो काबिलियत दी है, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर कर दें, उसको आप देखें ही नहीं. So let this not happen. Your child, if you think is anybody's child who's 17 now, stop worrying about him too much. What can you do? You can make dua. That's all you can do. You can you will definitely tell him, you will do, but जितनी कोशिश आप पहले करेंगे, वो कोशिश करने की मतलब उतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप दुआ करें. और बहुत सारे लोग, I mean, a few of my friends have also mentioned this कि
जैसे कि हर घर में अलग अलग सिचुएशन होता है, एंड सम घर में माएँ थोड़ी परेशान होंगी, फादर्स परेशान होंगे, द चाइल्ड इज रीचिंग एन एडोलसेंट एज वेयर his hormones are going up and down, and he's being very very difficult, and he's out of your reach now. So if he's giving you a hard time, what do? You speak to your friend, you speak to some uncle, you ask the grandfather to speak to him, you ask the chacha to speak to him. So you reach out to everybody that you can see around. So your connection becomes horizontal, whereas the connection should be vertical. जहां पर आप एज अ पेरेंट तहज्जुद में अल्लाह ताला से बात करें कि अमानत तो अल्लाह की थी, वो अमानत का वक्त भी हो गया, वो अल्लाह का बंदा है, बट आपको उससे लगाव है, आप चाहते हैं कि वो जो है सही रास्ते पे आए। तो बिकॉज ऑफ दैट लव, द बॉन्ड दैट अल्लाह हैज पुट इन यू बोथ, उसकी वजह से आप उठेंगे और आप अल्लाह से मांगेंगे। अदरवाइज इट्स नो पॉइंट आस्किंग पीपल अराउंड यू। तो आप में से कितने लोग तहज्जुद पे उठते हैं अगर आप सही मायने में परेशान हैं, और ये यकीन रखते हैं कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ वर्टिकल कनेक्शन से मुझे मिलेगा। Let your child see that you are troubled by him, but you don't, you don't belittle him, but you speak to the Rabb. Let him see that. वो अगर वीडियो गेम्स खेलता है इतने इतने घंटे की 4 बज गए हैं, एंड ही वॉचेस यू कि आप तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं उसी बच्चे के लिए, I feel things will change. My friend was saying that वो काफी बच्चों को बोलते थे कि नमाज पर जाओ, नमाज को मतलब मस्जिद में जाओ, and बच्चे बच्चे हैं, they were not thinking it's important. So then she started speaking to Allah about the boys, saying Allah, ये बच्चों को आप मस्जिद का रास्ता दिखा दीजिए, ये बच्चों को आप मस्जिद का रास्ता दिखा दीजिए। And when as a child you see your mother so humble and begging the Lord for the child's betterment, वो कहीं ना कहीं वो एक नरमी बच्चे में भी पैदा हो जाती है। क्योंकि जब जब हम अल्लाह से बात कर रहे हैं तो हमारा अंदाज अलग होगा, जब हम बच्चे से बात कर रहे हैं तो अंदाज अलग होगा। बच्चे से तो हम झिड़की से बात करेंगे, अल्लाह से तो बहुत आजीजी से मांगेंगे ना। तो ये है। तो आप सो द पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड वाज कि वरी अबाउट योर चिल्ड्रन, बट नाउ चेंज द स्टाइल ऑफ trying to work on them. Okay, right. Is there a set syllabus for tarbiya? आप सब लोगों को जवाब मालूम है। The set syllabus for tarbiya is सीरा। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिखाया है, जो खुद कहा है, करके दिखाया है, that's what we follow. But I mean, आप में से बहुत लोग होंगे, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो they cannot try to do everything. कहीं ना कहीं झोल होगी, लाइक उनको मालूम है कि बच्चे से जोर से बात करना बुरा है, लेकिन वो उनकी कमजोरी है, उस पर दे आर वर्किंग ऑन इट। बट एटलीस्ट दे शुड बी, out of 100 there should be 70 things that they're doing correct, isn't it? And 30 things are areas that they are working on, and inshallah Allah आसान करे, अल्लाह उनको उसमें ना पकड़े, but there should be evidence of them working towards those areas. So there's a syllabus. Now, you send your children to schools, and all good schools, mashallah. Wahan par there is a curriculum, there is a syllabus, the teachers are trained, and the teachers are told to prepare the plan in a certain manner, follow Bloom's taxonomy, and इसी तरीके से पढ़ाएं, उनको इस तरीके से बच्चों का growth कराएं. Okay, so all that is given to the teachers. What is given to the mothers then? Mothers should also have something, isn't it? So this is where, inshallah ta'ala, you make an intention of doing a very serious learning about parenting. And अगर आप फिर भी फेल होते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसके तो नंबर दे ही देंगे ना, कि आपने इसको सीरियसली लिया, आपने इसका पर्पस समझा और आपने कोशिश की, तो उसके तो नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो पल रहे हैं, right? So we have seen
वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, ये सब स्कूल्स में आ गया है, टेक्स्ट बुक के फॉर्म में भी आपके पास आ गया है। ये है क्या ये अखलाक नहीं है? और मेरा ये सवाल है कि आप ठीक है, एक हद तक तो आप जो है बच्चों को स्कूल भेजती हैं, बिकॉज हर हर पेरेंट हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, उसमें लैंग्वेजेस भी होंगे, उसमें कोर सब्जेक्ट्स भी होंगे, सो वी सेंड देम टू स्कूल्स फॉर subject experts to teach them. Why should teachers take the responsibility of putting good akhlaq in your children? क्या वो आपका जिम्मा नहीं है? अगर इसकी भी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगी तो फिर क्या लेंगी? तो मतलब सिर्फ सुबह नाश्ता बनाना, डब्बा देना और बच्चों के कपड़े तैयार रखना, बच्चे घर आए तो फिर उनको कुछ खिलाकर सुलाना, इतना छोटा तो पेरेंटिंग का रोल नहीं हुआ ना, इतना आसान भी नहीं हुआ। तो वैल्यू एजुकेशन, जो अखलाकियात जो हम कहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है टोटली। ये स्कूलों ने तो शुरू किया है बिकॉज दे हैव सीन दैट पेरेंट्स आर फेलिंग एंड द कम्युनिटी इज फेलिंग, तो मजबूरन द स्कूल्स हैव टू टेक इट अप। नाउ इमेजिन देयर इज अ सिचुएशन जहां पर नो स्कूल एग्जिस्ट, ओके, कोई स्कूल नहीं बना रहा, कोई स्कूल नहीं खोला, तो क्या आप उनको जिम्मेदार ठहरा सकेंगे? किसी को जिम्मेदारी ठहरा सकेंगे, या आपको खुद जिम्मेदारी लेना होगा अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के बारे में? जो अगर मैं स्कूल खोलती हूँ, दैट्स एन एडेड थिंग दैट आई वांट टू डू फॉर द सोसाइटी, टू प्लीज अल्लाह। And if I don't do, Allah might question me because Allah has given me a few skills and the time. That's a different thing. लेकिन जिसके ऊपर फर्ज है, उनसे तो पहला सवाल होगा। तो पेरेंट्स के ऊपर फर्ज है कि वो अखलाकियात खुद से पढ़ाए। ये वाला आई रेड दिस कोट एंड मुझे बहुत पसंद आया, अच्छी तरबियत अच्छे घरानों से मिलती है। ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं, है कि नहीं? तो आप तालीम के लिए भेजें स्कूल बच्चों को, कोई मसला नहीं है, लेकिन तरबियत आप खुद देकर भेजें ना। आपका बच्चा टीचर से कैसे बात करता है, आपका बच्चा सीट शेयर करता है या नहीं करता है, 50,000 चीजें हैं, वो अक्स है आपका। हमको पता चलता है कि घर में तरबियत कैसी हुई, और बहुत ज्यादा तौर पर कि माँ कैसी है। अब माएँ बोलेंगी कि हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हम ये जब हम स्कूल्स में बात करते हैं तो टीचर्स परेशान हैं ये बोलते हुए कि मदर्स चाहते हैं कि हम हर चीज का जिम्मा लें। वो थोप के जाते हैं हमारे पर ऐसे बच्चे जो हर मायने में बिगड़े हुए हैं, ना अखलाकी तौर पर, ना पढ़ाई में, ना अपीयरेंस में, ना हेल्थ में, किसी तौर पर वो ठीक नहीं है, और हम पर थोपे जाते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनको इतने ब्यूटीफुली कार्व करके बाहर भेजें। तो ये तो, एंड सम ऑफ यू माइट बी टीचर्स एंड यू विल एग्री, है ना, हमारा बच्चा क्यों नहीं खाया। भाई आप अगर घर पे सिखा देंगी कि रिस्क जो है, मतलब जो भी खाने प्लेट में है वो पूरा खा के उठते हैं, उसमें चूचा नहीं करते, तो बच्चा स्कूल में भी खाएगा। क्यों नहीं खाया, मतलब वो आपकी जिम्मेदारी थी पहले घर से समझा के निकालने की। तो it's getting very tough for schools to function because they are doing too many things that the parents should actually do. And जब हम schools में ट्रेनिंग देते हैं टीचर्स को, then we tell them that आप लोगों को करना पड़ेगा ज्यादा, because parents are incapable now. Incapable parents and disinterested teachers, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? The coming generation. So don't outsource everything. थोड़ी चीजें ठीक है, मदरसा भी आप आउटसोर्स करेंगी, ट्यूशंस भी आउटसोर्स करेंगी, स्कूल भी आउटसोर्स करेंगी, स्पोर्ट्स भी करेंगी, फिर बच्चे का डब्बा भी कहीं से आप पार्सल होकर आ जाए, और फिर आप कहती हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं दूसरों के लिए वक्त नहीं निकाल सकती। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, तरबियत बता देती है कि माय उर्दू इज ब्यूटीफुल, ओके, सो यू विल हैव टू बेयर विद इट। तबीयत के तरबियत बता देती है, अच्छा व्हाई डोंट यू पीपल रीड इट, व्हाई शुड आई रीड उर्दू एंड टेल यू हाउ गुड इट इज, इजंट इट? आपके घर पे बच्चे पल रहे हैं,
या बन रहे हैं। मैं तो बहुत सारे बच्चों को पलते हुए देखती हूँ, बहुत कम है जिनको मैं बनते हुए देख रही हूँ। एंड यू विल एग्री विथ मी। बड़े हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फिर बड़े हो रहे हैं, फिर बड़े हो रहे हैं। इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड, एंड इट टेल्स अ लॉट अबाउट द पेरेंट्स। एंड ब्लेम गेम बहुत होता है। मदर फादर को ब्लेम करेगी, बोलेगी कि उन उन मैं क्या करूं, उनके पास है आदतें वैसी, आते फोन देखते बैठ जाते, बच्चे का कुछ ख्याल नहीं करते, रात भर फोन देखते रहते, दोस्तों में चले जाते, उनकी खुद आदतें खराब हैं, नमाज को फादर नहीं उठते। यस, आई एग्री। एंड द फादर विल से कि माँ सिखाई तो सीखते, हर जगह माँ की तरबियत रहती। सो दिस ब्लेम गेम विल कंटिन्यू टिल यू बोथ डाई, एंड इन द मीन टाइम द टाइम विल पास। बच्चा जो है 2 महीने से 15 साल का हो जाएगा और आपका खत्म जो मौका था। छोटी छोटी चीजें ना, जैसे कि बच्चे के नेल्स कटे हुए हैं साफ सुथरे, बच्चा जो है साफ कपड़े पहना। इनफैक्ट आई I was coming down the stairs of a building, and every time I see, and you might laugh at this, every time I see the kachre ka dabba, okay, in a very dirty condition. आप बोलेंगे कचरे का डब्बा ही तो है, लेकिन कचरे का डब्बा, कचरा अंदर जाता है, पूरा कचरे का डब्बा अतराफ से इतना गंदा कि वो देखते ही आप बोलेंगे कि इस घर में क्या पैरामीटर्स हैं सफाई के। इट tells a lot about the person who's living inside. जिस तरीके से चप्पल बाहर जमे हुए होते हैं, उसी तरीके से बच्चा जिस तरीके से आता है, जाता है, बात करता है, it tells about the parents. So, and Aristotle का है, we can not take it but we can take it. जब तक आप बच्चे के जैसे दिल इज दी, जो अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ है, जो मकसद है, जो आप काम कर रही हैं, आप कितनी भी तालीम बाहर की दे दें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You want to do this or shall we skip it? We will skip it. I know you all alert, mashallah. Okay, आजकल के पेरेंट्स, you're loving, mashallah, you're very protective, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, बहुत कंसर्न हैं बच्चे को लेकर, आप खुद पढ़े लिखे हैं, कॉम्पिटिटिव हैं माशाल्लाह, डिसिप्लिन है, ओके, एंड बहुत बहुत हेल्पफुल भी है ना? यू विल ऑल एग्री विथ मी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन oh, by the way, can you see my screen or not? Yeah, I think you can see. Oh, Allahu Akbar, my slides are not moving. Let's see it in the chat. You can see my screen. Okay, great. Stuck on 21. What is 21? Oh, what is 21? Slide 21. I don't know the number of my slide. What do you see on the screen? Okay, resume. Then this comes up. Okay, if I close this. Okie dokie, okie dokie. Yeah, I think you can see something now. Can you see something now? Yes, Alhamdulillah, today's parents. Great, thank you, thank you. Okay, so all the wonderful qualities of today's parents, है ना? अच्छे अच्छे बच्चे हैं सब, अच्छे parents हैं. If I say that the love of your child comes in between the love of Allah, so you love your child too much that somehow the love of Allah gets foggy. You become too protective that you don't let the child breathe. You don't let the child explore. You don't let the child to learn from his own mistakes. So you're so protective about it. And
you feel you're responsible for everything that your child does. ऐसा तो नहीं होगा ना. He is a being that's going to take a shape of an adult. तो अगर आप उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे तो वो किस तरीके का एडल्ट बनेगा. एंड यू आर ओवर कंसर्न्ड. बच्चे को थोड़ा सा खरोच लग गया, अल्लाह ला 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 मेरा बच्चा. अच्छा, I know some children, very 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 big badmash they are. They play and then they get hurt and then they make sounds. Allah. Oh. And the mother बिचारी, she says कि मेरा तो दिल धड़कना बंद हो गया, क्या हुआ तुमको? And the child is saying कुछ नहीं हुआ. So the mother is so concerned about the child's well-being. मैं बोलती हूँ कि इतना अगर आप इन बच्चों को दिखाएंगे कि आप कंसर्न हैं तो फिर वो तो बच्चे आपको लेके खेलेंगे ना. तो all these things are beyond the natural limit. And when you say that you're concerned about education, we will cover this in the next session, inshallah, but then it's more about the worldly education that you're concerned about. And you want the child to be competitive to a limit where, it damages him. It damages his self-esteem. You compare your firstborn to the secondborn. You compare your secondborn to the aunt's son. कुछ ना कुछ चलता है. उसका देखो इंजीनियरिंग में फलां हो गया, तुम्हारे 4 साल कब से निकल गए, अभी तक नहीं हुआ. Okay? And discipline, again, you are for the worldly matters. As I said, जब आप स्कूल के लिए उठाते हैं और बच्चे को भेजते हैं, नमाज की फिक्र नहीं करते, so that's the problem. And you are overly helpful. हर काम आप बच्चे का करेंगे. मैं तो बोलती हूँ बच्चा अपने सॉक्स क्यों नहीं धो सकता, बच्चा शूज क्यों नहीं पॉलिश कर सकता, बच्चा आयनिंग थोड़ी देर के बाद आप कराएं फिर भी समझ में आता है, लेकिन क्यों नहीं कर सकता. So the problem is you're doing more than what is required in every area. पहले जमाने के बच्चे बस पूरा मोहल्ला मिलके पाल लेता था उनको. गिर जाते थे तो कोई उठाता था, कोई अपने घर ले जाके दवा लगाता था. अब हमारा बच्चा गिरता ही नहीं है क्योंकि हम इतने केयरफुल हैं. मोहल्ले में कोई किसी को जानता ही नहीं है, हम कहीं बाहर जाने ही नहीं देते हैं. So whoever is feeling very happy that they are a parent, continue being happy, but then it's a role where you can't miss a beat. आप छोटी सी भी चीज इधर से उधर करेंगे, you are responsible for it during the tarbiya period. आपके घर में लोग आते हैं या आप अपने बच्चों को कहीं ले जाते हैं, and there are many more habits that children have. इंशाल्लाह ये गुने में तो नहीं आएंगे, लेकिन ये हैबिट्स हैं. अगर किसी की बुरी आदत है और अगर मुझे तकलीफ हुई तो आखिरत में अल्लाह ताला फिर वो हिसाब करेंगे, है ना. जरूरी नहीं है कि वो गुनाह ही हो. जैसे कि अगर आपके बच्चे जाते हैं और किसी के सोफे पे जंप करते हैं, छोटे बच्चे ही है ना, दीवार पे लिख रहा है अल्लाह कितना प्यारा दिख रहा, देखो कितना अच्छा बनाया उन्हें. And then child goes and eats something, uses the curtain to wipe his hands. He goes and opens all the cupboards at the host house, checks the drawer, doesn't want to share. आपके घर पे आते हैं, आप बिठाते हैं, टॉयज देते हैं, वो टॉयज वैसे ही बिखरा के छोड़ के चले जाते हैं. या फिर बच्चे को कोई चीज इतनी अच्छी पसंद आती है that he wants to keep it to himself. तो वो आएगा, माँ के कान में खुसफुस करेगा, बोलेगा कि ये मेरे को कार होना, ये कार होना. एंड द मदर सेज ऐसी करता ही नहीं, जहां जाता उसको जो पसंद आता होना बोलता. एंड देन द होस्ट इतनी शर्मिंदी हो जाएगी, वो बोलेगी अच्छा लेने दीजिए. ओके. और फिर जो उल्टा जवाब आपको देते हैं बच्चे, अगर आप कुछ चीज मना करते हैं लोगों के सामने, तो फिर आप वो दबे अल्फाज में बोलेंगे घर चल मैं बताती हूँ, लेकिन वहां तो वो बोल रहा है. तो ये सब जो छोटे बच्चों की आदतें हैं, ये तरबियत में आती हैं. ये नहीं करना है तो नहीं करना है. एंड an incapable mother will allow all these things to happen because she
doesn't see this as a big thing. बच्चे ही लिखते ना दीवार पे, बड़े लिखते क्या? भाई आपके बच्चा आपके घर की दीवार पे लिखेगा, आपको प्यारा दिखेगा। मेरी दीवार पे आके क्यों लिखे वो? और अगर मैं घर की ओनर हूं तो मैं बोलूंगी कि आप टेनेंट हैं, आप क्यों लिखने दे रही हैं? तो इस सलीखे वाली माँ क्या करेगी, सलीखे वाले फादर क्या करेंगे? ही नोज दैट दिस इज द अर्ज ऑफ द चाइल्ड, ही विल क्रिएट some solution where he can still write on the wall. Your child wants to jump, they will create a solution. Okay, so the urge of the child, don't curb it, let him be a child. Okay, अगर बच्चा दूसरों के घर पे जाता है, कोई चीज लेना चाहता है, तो आप पहले से ही उसको समझा के लाएंगे कि बेटा हर जगह जब हम जाते हैं तो हमको 50 चीजें दिखेंगी जो अच्छी दिखते हैं, हर चीज we cannot bring it home. Okay, so and if you do this again, you will not go out anywhere with me. And stick to it. The biggest problem is माँ no बोलती है, फिर दूसरे सेकंड पर she is okay with that. It doesn't work. Okay, so be strict with your instruction, and inshallah ta'ala don't love the child to a limit where you're spoiling him. And आप एक beautiful दरख्त तैयार कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, या फिर आप उतनी ही साइज का एक बहुत कांटीला झाड़ तैयार कर सकते हैं जो सबको तकलीफ देता है, एंड जिम्मेदार आप होंगे। ओके, सो डोंट ओवर प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, जहां पर वो इससे भी आप बचा के रख रहे हैं, लोगों से भी बचा के रख रहे हैं, कूदने से भी बचा के रख रहे हैं, तो इट डजंट हेल्प द चाइल्ड ग्रो वेरी वेल। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, नहीं नहीं वो मत खिलाइए, नहीं नहीं वो मत करिए, वहां मत जाने दीजिए, बेटा कूदो मत, भागो मत, बेटा वो मत पहनो। There's always no for everything. तो बच्चा करे क्या? So don't put him in a box and then think कि आप बहुत अच्छा बच्चा बड़ा कर रहे हैं। Okay? This is a beautiful poem that I want you to hear. जो माएँ अपने बच्चे को इतना दबा के पालती हैं, दबाना इन द सेंस मोहब्बत में दबाती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सख्ती में दबाती हैं, ओके, इतने मोहब्बत से दबाती हैं कि बेटा फॉर एग्जांपल हमारे घर के बगल पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड लेबर्स हैं, बहुत चिलचिलाती धूप है, तो बच्चे का दिल ये करता है कि अम्मी मैं उनको जाके पानी का बॉटल देकर आऊं क्या, ठंडा वाला, ये मौका है तरबियत का। माँ क्या कहेगी, अल्लाह कितनी धूप है, तुम कैसे जाते बेटा, नक्को। ओके, सो what has stopped her from allowing the child to do something good? She had an opportunity of tarbiyah, her love was smothered, कहते हैं ना, you smother somebody with love, कि उनका दम ही घुट जाए, वो मरी जाए। तो listen to this, can you see YouTube? Is the screen visible or is it still on the PowerPoint? If you can WhatsApp me, Arshia Baji. Yes, sir, it's visible. Can you? Okay, great. Thank you. And then I should allow you to listen as well. How do we do that? Recording record, start with this. Enable. Great. मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बड़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी, ज़मर्रुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, कुछ चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर, वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़ के आ गए तुम कहाँ, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज अश्कों के हार,
न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचुताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। हम्म ब्यूटीफुल पोएम। तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। आई फाइंड इट वेरी वेरी डीप। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला भेजते हैं दुनिया में किसी को इतना काबिल बनाकर, और पेरेंट्स बस खत्म कर देते हैं। आप जो 100 लोग यहाँ मौजूद हैं या 150 लोग जो मौजूद हैं, उसमें सबके पास 2-3 जितने भी औलाद है, समझिए 300 औलाद तो अभी मतलब आप सब के साथ होंगी। उसमें कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला ने किसी बड़े मकसद से भेजा है एंड जरिया आपको बनाया है। नाउ योर टेस्ट इज, डू यू take him to his ultimate limit, or do you snub it? And you might be thinking that you are doing good for him. So that's the reason I put that image of the chair जो बहुत कांटों से भरा हुआ है। Don't think कि आप इतने कुशन्ड चेयर के ऊपर आराम से बैठे हैं। It's I mean जिनकी औलाद नहीं है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर निकल जाएंगे, उनको सवाल के जवाब देने ही जरूरत नहीं है। और जिनकी जितनी औलाद है उतने सवाल होंगे। इट्स अ स्केरी थॉट, इजंट इट? एंड अगर ये जो जो नज्म थी और जितने लोग बोलते हैं, मदर्स पूछते हैं कि हमारे हमको क्यों बोलते हैं बार बार आप, ना जैसे कि लड़की कहती है कि मुझे ही क्यों बोलते हैं, भाई को क्यों नहीं बोलते, बीवी को ही क्यों बोलते हैं कि सब्र करके चलो, वैसे माँ बोलेगी कि हमको क्यों बोलते हैं कि बच्चे की तरबियत करो। बाप की भी जिम्मेदारी है तरबियत, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द मदर और द फादर, इट्स अबाउट यू एंड योर जर्नी, इट्स अबाउट यू एंड योर टेस्ट, इट्स अबाउट यू एंड योर एफर्ट्स, इट्स अबाउट यू एंड योर जर्नी। So it can be the mother, it can be the father. It doesn't matter who it is. It's, have you understood your purpose? Have you understood your job role, job description, and are you fulfilling it? एंड जो कहते हैं कि हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, हमारे हस्बैंड बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं मेरे जो भी तरबियत के वो हैं उसूल हैं, it's difficult, it's not easy when the couple have two different way of thinking. It's always difficult, and with the child it's going to get even more tough. We acknowledge that, we can see that, but the bigger question is, have you understood your purpose as a parent? Okay, so it's not about any gender, it's about purpose of the person. So having understood all this, what is something that you should focus on for those 13-14 years, and what is something that you can ignore? I think if you can focus only and only on akhlaq, you are done. And why do I say this? Because एक तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, हदीस हमको इतनी मिलती हैं, और अगर मैं आपके बच्चे को देखती हूँ and he's full of akhlaq, okay, एजुकेशन एंड उसकी जो भी चीजें जिसपे अभी ज्यादा तवज्जो हो रहा है, जैसे कि हम बहुत अच्छा एजुकेशन करा दें, इंग्लिश अच्छी एक्सेंट से करा दें, उसकी जॉब करा दें, कुछ और कोर्सेज करा दें, all that will come as a package if the akhlaq are good.
वो कैसे होगा? अगर आपके बच्चे को मैं देखती हूँ ब्यूटीफुल अखलाक है, मैं खुद ऑफर करूंगी कि अरे बिलाल, मैं आपको ना वो कंप्यूटर कोर्स सिखा देती हूँ, बिकॉज आई एंजॉय बीइंग विद दैट चाइल्ड. Okay, and it gives me great pleasure when I teach him something and he's so humble, he is full of akhlaq and he says thank you auntie, fala auntie. कितने बच्चों को आप कुछ तोहफा देते हैं एंड वो थैंक यू तक नहीं बोलेंगे, एंड उनकी मदर्स भी फोर्स नहीं करेंगी उनको बोलने के लिए, दे टेक इट एज देयर राइट, तो आपका दिल नहीं करेगा. तो ये जो हम लोगों ने अपसाइड डाउन कर दिया है एजुकेशन, तालीम को जो ऊपर ला लिया है, और हम सोचते हैं कि तरबियत तो हो ही जाएगी, ये गलत है. इसको आप ब्रिंग इट इन द राइट पोजीशन. तरबियत पे तवज्जो दीजिए, दूसरी चीजें इंशाल्लाह कैसे भी आएंगी. Okay, this is what I feel and I believe and I have seen in children, like my friends' children. If they're very very good in akhlaq, I want to do more for them. And if there are some children who who have their own things, फिर हम तो anyways, how much time do I have? Can somebody please tell me? You've taken 1 hour, 41 minutes, ma'am. Okay. Okay, so we can take questions now and we can continue later. Shall we do that? I think we can do that, Mufita, because we have already crossed beyond 12:30 now. Yes, I understand. So we'll take this in the next session, inshallah ta'ala. We have covered most of the why, and we have covered why and most of the how. So any questions? Now you can unmute yourself and ask if you have any questions. I don't think there'll be any questions because it's something that you have been doing every day and it's now rocket science. I'm not taking a physics session जहाँ पर कोई सवाल होगा. So shall we wind up then, inshallah? Okay, let me read the messages. Oh, 15 new messages. Okay. Okay, if you're doing our best and the child doesn't obey, that's fine. So will you be questioned about, did your child obey or not? Or will you be questioned, have you done your part or not? If we are focused about the results, then we're going to fail.